Good morning, students. Welcome to another lecture on grammar. In this lecture, also, I will talk about subject verb agreement. So, let us start. Two or more singular subjects, दो या दो से ज़्यादा singular subjects connected by or nor. अगर हमने और या नॉर से कनेक्ट करते हैं रिक्वायर अ सिंगुलर वर्ब, तो ऐसी जगह पर हमें ऐसे सेंटेंस में हमें सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है. लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. नो नुक और कॉर्नर वाज लेफ्ट एक्सप्लोर्ड. ओके, और से कनेक्ट किया है. वन मोर एग्जांपल. आइदर द कैट और द डॉग हैज बीन हियर. आइदर और. नाइदर फूड nor water was to be found there. Neither nor. One more example. Neither praise nor blame seems to affect him. Neither nor. इस तरह आपने देखा कि when we connect to two or more singular subjects by or, nor, either or, neither nor, we need a singular verb. Okay? But when one of the subjects joined by or nor is plural. हाँ, ये भी ध्यान रखना है कि जब जो सब्जेक्ट्स हमने और या नॉर से कनेक्ट किए हैं या नाइदर नॉर आइदर और से कनेक्ट किए हैं उनमें से वन ऑफ द सब्जेक्ट्स इज प्लूरल. the verb must be plural. तो ऐसे अगर एक सब्जेक्ट प्लूरल है तो वहाँ वर्ब भी हम प्लूरल रखेंगे और इसके साथ ही एंड द प्लूरल सब्जेक्ट शुड बी प्लेस्ड नियरेस्ट द वर्ब. और प्लूरल जो सब्जेक्ट है वो वर्ब के पास आएगा. लेट अस टेक अ फ्यू एग्जांपल्स. Neither the chairman nor the directors are present. In this sentence, chairman is a singular verb, singular subject, and directors plural. So we have used are plural verb, and at the same time we have put directors near the plural verb. Plural verb के पास रखा है. इस बात का भी ध्यान रखना है. ओके. नेक्स्ट. व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आर ऑफ डिफरेंट पर्सन्स. यस, अब तक नंबर की बात हुई, सिंगुलर प्लूरल की. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट पर्सन्स. व्हेन द सब्जेक्ट्स जॉइंड बाय और नॉर आइदर और नाइदर नॉर are of different persons, the verb agrees with the nearer. अगर different persons हैं, second person, first person, third person, तो verb जो होगी वो पास वाले सब्जेक्ट के हिसाब से डिसाइड होगी. फॉर एग्जाम्पल, either he or I am mistaken. In this sentence we have used two pronouns, he and I. He belongs to third person and I to first person. So we have used the verb am. Okay? जो nearer है. Next sentence, next example you can say, either you or he is mistaken. In this sentence we have used two pronouns, you and he. He verb के पास है, इसलिए ही के हिसाब से हमने वर्ब यूज किए. नेक्स्ट. नाइदर यू नॉर ही इज टू ब्लेम. ही, यू एंड ही यूज किया है ही के हिसाब से.
नेक्स्ट एग्जाम्पल, नाइदर माई फ्रेंड नॉर आई एम टू ब्लेम। इसमें माई फ्रेंड एंड आई, वी हैव यूज्ड द वर्ब अकॉर्डिंग टू द प्रोनाउन आई, बिकॉज आई जो प्रोनाउन है वो वर्ब के पास है। ओके, नेक्स्ट, आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी है, मस्ट बी फॉलोड बाय अ सिंगुलर वर्ब। ये जितने भी आइदर, नाइदर, ईच, एवरीवन, मैनी है, इन सब के बाद सिंगुलर वर्ब आती है। लेट अस अगेन टेक अ फ्यू एग्जांपल्स। सॉरी, he asked me whether either of the applicants was suitable. We have used either in this sentence, so we will use was, singular verb. Neither of the two men was very strong. Neither, so singular verb was is used in this sentence. Many a man has done so. Many पहले ही बताया, मैनी है, मैनी है यूज किया, इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब यूज किया। मैनी ए मैन डज नॉट नो हिज ओन गुड डीड्स, मैनी है यूज किया है। सो अगेन वी आर यूजिंग द सेम सिंगुलर वर्ब। ओके, नेक्स्ट, two nouns qualified by each or every, even though connected by and, require a singular verb। दो नाउन जिन्हें ईच या एवरी से क्वालिफाई किया है, जिनसे पहले हमने ईच या एवरी लगाया है, भले ही उन्हें एंड से कनेक्ट किया हो, लेकिन उनके बाद सिंगुलर पर यूज करेंगे। Let's take a few examples. Every boy and every girl is wearing a uniform. In this sentence, we have connected boy and girl by and. But boy and girl are qualified by every. Boy and girl को and से तो कनेक्ट किया है, लेकिन दोनों के पहले every आ रहा है, इसलिए हम इस सेंटेंस में सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। One more example. Every boy and every girl was given a packet of sweets. Again, in this sentence, we have connected boy and girl by and, but at the same time, we are using every both before boy and girl. So, we are using a singular verb in this sentence also. Okay, next, a collective noun takes a singular verb when the collection is referred to as a whole। कोई भी कलेक्टिव नाउन अगर उसे एक सिंगल यूनिट के रूप में हम देखते हैं, एक इकाई के रूप में बात करते हैं, तो उसके पहले हम सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। प्लूरल वर्ब व्हेन द मेंबर्स ऑफ द कलेक्शन आर रेफर्ड टू, और जब उस कलेक्टिव नाउन के मेंबर्स की तरफ इशारा होता है, उन मेंबर्स के इंडिविजुअल मेंबर्स की बात होती है, तो हम प्लूरल वर्ब यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, द कमिटी हैज इशूड इट्स रिपोर्ट। यहाँ कमिटी एक सिंगल होल के रूप में यूज कर रहे हैं, हम एक यूनिट है, इसलिए हैज सिंगुलर वर्ब यूज किया हमने। बट नेक्स्ट एग्जांपल में, द कमिटी आर डिवाइडेड ऑन वन माइनर पॉइंट। हाँ, यहां कमिटी एक नहीं है, डिवाइडेड है, मीन्स मेंबर्स की बात कर रही है, मोर देन वन, इसलिए प्लूरल वर्ब यूज किया। ओके, नेक्स्ट,
वर्ड्स जॉइंट टू अ सिंगुलर सब्जेक्ट बाय विद, अगर हम कुछ वर्ड्स को सिंगुलर सब्जेक्ट का जोड़ते हैं, जैसे विद के साथ, टुगेदर विद, इन एडिशन टू, एज वेल एज, नो लेस, एट्सेट्रा, डू नॉट अफेक्ट द सब्जेक्ट। तो ये जो इन वर्ड्स के साथ जो वर्ड्स जोड़े जाते हैं, वो वर्ड्स सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करते। इसलिए अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है, दिस अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। फॉर एग्जाम्पल, मोहन सिंगुलर है, टुगेदर विद सोहन, हमने सिंगुलर के साथ टुगेदर विद के साथ जोड़ा है, इज गोइंग टू जयपुर। तो यहाँ टुगेदर विद सोहन ने मोहन जो सब्जेक्ट है उसको प्रभावित नहीं किया, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर ही रहा, इसलिए इज सिंगुलर वर्ब यूज किया। द काउ एज वेल एज द हॉर्स ईट्स ग्रास, यह काउ हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है और उसके साथ हमने एज वेल एज के साथ हॉर्स यूज किया है, लेकिन ये एज वेल एज द हॉर्स हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट को प्रभावित नहीं करेगा, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया। ओके, नेक्स्ट, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद हियर और देयर, जब कोई सेंटेंस हियर या देयर के साथ शुरू होता है, द वर्ब एग्रीज विद द फॉलोइंग सब्जेक्ट। तो हियर या देयर से शुरू होने वाले सब्जेक्ट में वर्ब जो आती है वो वर्ब के बाद आने वाले सब्जेक्ट के हिसाब से आती है। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, हियर कम्स द ब्राइड, ब्राइड इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसलिए सिंगुलर वर्ब कम्स। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर आर मेनी ऑब्जेक्शंस टू द प्लान, यस, इन दिस सेंटेंस ऑब्जेक्शंस इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, वर्ब के बाद आ रहा है, सो वी हैव यूज्ड आर, प्लूरल। अगेन, देयर आर 50 स्टूडेंट्स इन द क्लास, स्टूडेंट्स, अगेन इन दिस सेंटेंस स्टूडेंट्स इज अ प्लूरल सब्जेक्ट, so we are using are, a plural verb. Okay, next, when the plural noun is a proper name for some single object, yes, अगर कोई प्लूरल नाउन दिखने में प्लूरल है और वो किसी चीज का प्रॉपर नेम है, फॉर सम सिंगल ऑब्जेक्ट और सम कलेक्टिव यूनिट, या किसी कलेक्टिव यूनिट के लिए, इट मस्ट बी फॉलोड बाय ए सिंगुलर वर्ब, तो उसके बाद भी सिंगुलर वर्ब ही यूज की जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, द अरेबियन नाइट्स इज स्टिल अ ग्रेट फेवरेट, यस, अरेबियन नाइट्स प्लूरल है लेकिन यूजिंग इज अ सिंगुलर वर्ब, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नेम है किसी चीज का। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज अ बिग नेवी, ओके। गुलिवर्स ट्रेवल्स वाज रिटन बाय स्विफ्ट, ट्रेवल्स है लेकिन सिंगुलर वर्ब यूज किया गया। प्लूटार्क्स लाइव्स इज एन इंटरेस्टिंग बुक, प्लूटार्क्स लाइव्स बुक है, ओके। Next, when a plural noun denoted some specific quantity, or amount considered as a whole, जब कोई प्लूरल नाउन कोई स्पेसिफिक क्वांटिटी बता, कोई विशेष मात्रा बताता है या कोई अमाउंट बताता है, जिसे हम एक होल के रूप में, एक यूनिट के रूप में देखते हैं, सिंगुलर, तो ऐसे सेंटेंस में भी सिंगुलर वर्ब की आवश्यकता होती है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं हम,
10 kilometers is a long walk. किलोमीटर्स प्लूरल है, लेकिन एक सिंगल क्वांटिटी बता रहा है, अमाउंट बता रहा है, इसलिए सिंगुलर वर्ब यूज किया. 50,000 रुपीज इज अ लार्ज सम. 1000 रुपीज, 1000 रुपीज प्लूरल नाउन, लेकिन एक अमाउंट, सिंगल अमाउंट बता रहा है, इसलिए वी हैव अगेन यूज्ड अ सिंगुलर वर्ब. ओके, सो थैंक यू बॉयज. स्टे होम, स्टे सेफ, स्ट्रिक्टली फॉलो कोरोना गाइडलाइंस, फैमिली के साथ टाइम बिताएं. ओके, थैंक यू.